Today, we are going to study a very interesting and genuine story. The title of this story is The Address, and this is the lesson number 2nd in our syllabus of class 11th. The writer of this story is Marga Minko, and the narrator of this story is a young girl. In this story, there is the reference or there is the description of post-war decisions, post-war results. This is very touching story. This story describes the incident of Holland. I mean to say, the story describes the incident of country Holland. This is a touching story. A family had to move out of their country, Holland, because of war. After the war, a daughter of the family goes back to her native place in Holland in search of mother's belongings. When she finds them, these objects evoke memories of her former life. However, she doesn't want to drag her past with her. She had to come with the fondness to find these objects and take them back with her. But she decides to leave them there and moves on. Means, first of all, when there is the end of the war, the girl who is the daughter of a woman who is suffering from the post-war results, the woman asks her daughter to go back to Holland and to see the objects, to see the things which she left in Holland with a woman who was her neighbor. The narrator, who is this woman's daughter, goes to Holland, and when she sees these things create a lot of pain in her heart and mind, and she wants to give up, or she wants to leave these memories of past because these create a lot of pain in her heart. So let us read the story in detail and find out what are the results of post-war. Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the steps. No, I don't know you. I am Mrs. S.'s daughter. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. बिल्कुल जो ओपनिंग है इस स्टोरी की, उसमें एक डायलॉग है, उसमें एक कन्वर्सेशन से ओपनिंग होती है. डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड. मैंने पूछा कि आप क्या मुझे जानते हैं. आई हमेशा जो नरेटर होगा स्टोरी का वही आई शब्द अपने लिए यूज करेगा, यानी कि मैं कहूँगा कि आई, माई, मी, माई सेल्फ, आवर, एटसेट्रा. इस प्रकार की जो प्रोनाउंस हैं वो नरेटर वर्णन करेगा, नरेटर अपने लिए यूज करेगा. तो यहाँ पर जो नरेटर है, वर्णन करता है कहानी का, वो एक गर्ल है, एक यंग गर्ल है, और वो स्टार्टिंग करती है डायलॉग से कि क्या आप भी मुझे जानते हैं. द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. और महिला मुझे मेरी तरफ इस तरह से देखने लगी जैसे सर्चिंग कर रही है, यानी कि तलाश कर रही कुछ, यानी कि ढूंढने की कोशिश कर रही है. उसने दरवाजा खोला. उसने दरवाजा खोला, चिंक, थोड़ा सा. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. मैं उसके नज़दीक गई और मैं उसकी डोर की स्टेप पे खड़ी हुई. उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जानती. मैंने बताया कि मैं श्रीमती एस की डॉटर हूँ. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. उसने डोर पे इस तरह से हाथ लगा लिया जैसे कि वो नहीं चाहती थी कि जो डोर था वो और ज़्यादा खुले. प्रिवेंट मतलब रोकना, यानी कि उसको ज़्यादा खुलने से रोकना चाहती थी. हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. रिकॉग्निशन, पहचानना. उसका चेहरा ऐसे भाव दिखा रहा था जैसे उसने मुझे पहचाना नहीं. वो मेरी ओर चुपचाप स्टेयरिंग करती रही. स्टेयर क्या होता है? घूरना, टकटकी लगा कर देखना.
Perhaps I was mistaken. I thought, perhaps it isn't her. I had seen her only once, fleetingly. वर्ड क्या है? फ्लीटिंगली. फ्लीटिंग हल्के से, यानी कि ज्यादा ध्यान न देते हुए. एंड दैट वाज ईयर्स एगो. मैंने शायद कभी देखा था इसको, और वो भी वर्षों पहले. इट वाज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल. और नरेटर जो लड़की है वो कहती है कि शायद मैंने गलत दरवाजे की घंटी बजा दी थी. द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड. शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन. और उस महिला ने मेरी माँ के द्वारा बुनी हुई हरे रंग की कार्डिगन पहनी हुई थी. हरे रंग की यानी कि ऊन से बनी हुई पोशाक पहन रखी थी. द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग. और जो लकड़ी के उस पर बटन लगा रखे थे कार्डिगन पे, ऊन से बनाए हुए स्वेटर के ऊपर, वो थोड़े से पीले पड़ गए थे. शी saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. और उस महिला ने देखा कि मैं उसकी कार्डिगन को ज़्यादा ध्यान से देख रही थी, तो उसने और ज़्यादा अपने आप को दरवाजे के पीछे छिपा लिया ताकि मैं कार्डिगन को पहचान ना पाऊँ. बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट. लेकिन मुझे अब लगा कि हाँ, मैं बिल्कुल सही दरवाजे पे खड़ी थी. यही महिला थी जिसके पास मेरी माँ लड़ाई युद्ध होने से पहले अपना घर का सामान छोड़ के गई थी, और ये महिला मुझे अपना जो है अंदर आने देना नहीं चाहती थी. वेल यू न्यू मी माई मदर, आई आस्क्ड. हाँ, आप मेरी माँ को जानती हैं, मैंने पूछा. हैव यू कम बैक, सेड द वुमन. और उस महिला ने कहा कि क्या तुम वापस आ गए हो. आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक. मैंने तो सोचा था कोई नहीं आएगा, ओनली मी. मैंने कहा कि केवल मैं आई हूँ, सारा परिवार नहीं आया है. A door opened and closed in the passage behind her. Musty smell emerged. दरवाज़ा पीछे के रास्ते से बंद हुआ. वहाँ पर स्मेल आ रही थी. स्मेल होता है गंध, और मैं यहाँ पर दुर्गंध कहूँगा इसको. मस्टी स्मेल, वहाँ पर दुर्गंध आ रही थी. आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू. महिला ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती. आई कम here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. मैं स्पेशली रेल के द्वारा, ट्रेन के द्वारा आई हूँ, आपसे बातें करने आई हूँ. It is not convenient for me now, said the woman. महिला ने कहा, अब ये मेरे लिए convenient नहीं है. Convenient, comfortable. I can't see you another time. She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उसने nodded, सिर हिलाया और बड़े ध्यान से दरवाज़ा बंद किया ताकि कोई अंदर जो है डिस्टर्ब ना हो. आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप. द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड. समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड. शायद दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे कोई था. शायद वो मुझसे पूछना चाहता था मैं क्या चाहती हूँ. ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड. महिला ने कहा कि कुछ नहीं चाहती है. इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं है. आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन. और मैंने नेम प्लेट देखी घर की. डॉर्लिंग इट सेड. और उस पर लिखा था डॉर्लिंग. क्या लिखा था? डॉर्लिंग. इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनिमल, काले अक्षरों में. एंड ऑन द जेम अ बिट हाइयर द नंबर 46. और हाउस नंबर था 46. घर का नंबर कितना था? 46, यानी कि 46 नंबर था. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. मैंने उस पते के बारे में सोचा जो मेरी माँ ने दिया था. तो इस लेसन का जो टाइटल है वो दी एड्रेस, और ये एड्रेस पे ये सारी कहानी टिकी हुई है. It had been in the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something, or rather about the rooms, had changed. I missed various things. मुझे बहुत सी चीज़ें याद आई. My mother was surprised. I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Dorling. फिर उन्होंने मुझे मिसिस डॉर्लिंग के बारे में बताया. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. मैंने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सुना था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से, apparently प्रत्यक्ष रूप से वो मेरी माँ की acquaintance थी. Acquaintance होता परिचित, चित परिचित, जिनको जानते हैं. When she hadn't seen for years, she had suddenly turned up and renewed their contacts. Since then, she had come regularly. उसके बाद वो रोजाना आती थी. ये युद्ध से पहले की बातें हैं. Even time she lives here, she takes something home with her, said my mother.
और मेरी माँ ने बताया था कि वो हमारे जब घर आते थे कुछ चीज़ें लेके भी जाती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक बार में ही, एक बार में ही वो मेज़ के ऊपर जो चीज़ें रखी थी उनको ले गई थी। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर। एंटिक क्या होता है? एंशियंट, प्राचीन, और प्राचीन जो चीज़ें हैं प्लेट्स वगैरह उनको ले गई थी। शी हैड ट्रबल लगिंग, लगिंग क्या होगा? ड्रैगिंग, घसीटना, वो ट्रबल लगिंग थी, यानी कि समस्याओं वाली में ही था। दोज बेसिस एंड आई एम वरीड शी गोट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। माई मदर शुक हर हेड pityingly. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted. उसने जिद की. She wanted to save all my nice things. उस महिला ने मेरी माँ को कहा कि मैं तुम्हारी सारी चीज़ें बचा के रखूंगी, चिंता मत करो। If we have to live here, we shall lose everything, she says. और उसने कहा कि अगर तुम अपने घर में छोड़ के जाते हो तो वॉर के बाद, युद्ध के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे पास रहने दो इन चीज़ों को। Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. And think about the risk she is running each time she goes out of her door with a full suitcase or bag. वो हर बार एक बैग को भर के हमारे घर से सामान का लेके जाती थी। कौन?